دعا کیا کریں، مرنا تو ایک دن سب نے ہے، دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ میرے پاس اپنے بھائی کے لیے الفاظ، ساری خواہشیں میری بن کے پوری کرنے والا میرا بھائی چلا گیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، میرا بیٹا سرخرو ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، ہم نے شروع سے ایک مصرع سنا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس مصرعے کو فار گرانٹڈ لیا، انہیں آج تک اس مصرعے کا مطلب سمجھ نہیں آیا، لیکن آج ہمیں اس مصرعے کا مطلب سمجھ آیا ہے۔ تو منکیالہ میں، جو کہ راولپنڈی کا ایک مضافاتی علاقہ ہے، یہاں پر کل ایک ایسے آرمی جوان کی شہادت ہوئی اور اس کا جسد خاکی لایا گیا جس نے فتنہ خوارج کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ یہ تھے 29 سال کے میجر حمزہ اسرار، جن کی 29 دسمبر کو شادی ہوئی اور شادی کے ٹھیک ایک ماہ کے بعد 29 جنوری کو فتنہ خوارج سے لڑتے ہوئے انہوں نے شمالی وزیرستان میں جام شہادت نوش کیا۔ اور بتایا یہ جاتا ہے، ان کے جو NCB ہیں، ان کے جو دوست ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ میجر حمزہ اسرار جو ہے وہ زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور گاڑیاں نکالتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور 6 جو فتنہ خوارج کے لوگ تھے ان کو جہنم واصل کیا۔ اس وقت ہم موجود ہیں ان کے گاؤں میں، آئیے ذرا ان کی فیملی سے بھی بات کرتے ہیں، ان کے NCB سے بات کرتے ہیں، محلے والوں سے بات کرتے ہیں کہ میجر حمزہ اسرار کیسی طبیعت کے مالک تھے، کس طرح آرمی میں پہنچے، جب جام شہادت نوش کیا تو اس کے بعد ان کی فیملی کے کیا تاثرات ہیں اور ان کے گاؤں والوں کے کیا تاثرات ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میجر حمزہ اسرار شہید کی والدہ، آئیے ذرا ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ماں ہے، وطن کی خاطر وہ شہید تو ہوئے، لیکن ماں ہے، ان کا جذبہ کیسا ہے، اور حمزہ سے بچپن کی جو یادیں ہیں ان کے ساتھ وہ بھی ذرا ان سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماں جی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، حمزہ بچپن میں کیسے تھے، کیسی طبیعت کے مالک تھے، اور آرمی میں جانے کے بعد کیا ان کی طبیعت میں کوئی فرق آیا؟ میرا بیٹا بچپن سے بہت اچھی طبیعت کا تھا، کوئی شرارتی نہیں تھا، پڑھائی میں بہت دلچسپی لینے والا بچہ تھا۔ اس نے میٹرک پری کیڈٹ سے کیا تھا۔ پھر مجھے شوق ہوا کہ میں اپنے بچے کو، میں دیکھتی تھی لوگوں کے بچوں کو وہ آرمی میں آفیسر ہیں، مجھے شوق پیدا ہوا، میں نے پھر اپنے بچے کو کیڈٹ کالج چکوال میں بھیجا۔ وہاں سے میرے بچے نے بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ پھر کمیشن کے لیے اپلائی کیا، وہاں سے بھی میرا بیٹا کامیاب ہوا۔ پھر ٹریننگ کر کے دوبارہ جب یونٹ میں آیا تو آج تک میرے بیٹے کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرا بیٹا بہت اچھی طبیعت کا تھا، مجھے بہت فخر ہے اپنے بیٹے پہ۔ میں کہتی ہوں اگر میرے دونوں بچے بھی قربان ہو جائیں نا اس ملک پہ تو مجھے بہت ناز ہوگا اپنے بچوں پہ۔ یہ میرا بہت کہ 5 وقت نمازی تھا میرا بیٹا، بہت سچے صاف دل کا تھا، بہت اچھی طبیعت کا تھا۔ اس کے ماتھے کے پہ کبھی کوئی شکن تک نہیں آئی، ہر ٹائم جدھر سے بھی نکلتا تھا ہنستا رہتا تھا بس۔ سب سے پیار کرنے والا، اپنے بھائیوں سے بہت پیار تھا اس کو۔ جی، وہ وطن کی خاطر شہید ہوئے اور ملک کی خاطر شہید ہوئے، اس ملک کی عوام کی خاطر شہید ہوئے، اور ایک بہت بڑا رتبہ انہوں نے پایا۔ یہ بتائیے گا، جب آپ کی ان سے بات ہوتی تھی، جب وہ چھٹی پہ آیا کرتے تھے، کیا آپ سے شہادت کا اظہار کیا کرتے تھے کہ یا آپ سے کوئی دعا کروایا کرتے تھے کہ ماں جی میرے لیے دعا کریں کہ مجھے شہادت جیسا عظیم رتبہ حاصل ہو؟ جی بیٹا، جب بھی وہ آتا تھا واپس جاتا تھا، گھر بیٹھ کے ہم کوئی بات کرتے تھے تو ہمیشہ مجھے یہی کہتا تھا کہ ماما دعا کیا کریں، مرنا تو ایک دن سب نے ہے، دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ تو میں کہوں کہ نہ میرے کہنے سے شہادت ملتی ہے، نہ آپ کے کہنے سے، بس انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے اور اللہ جس طرح چاہے گا اسی طرح ہوگا۔ بس یہ میرے بیٹے کی بہت خواہش تھی، ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اللہ کرے مجھے شہادت کی موت ملے۔ اچھا، یہ بتائیے گا، وہ وطن کی خاطر تو شہید ہوئے، بہت بڑا اعزاز ملا آپ کو، دنیا کے جانے کے بعد بھی آپ کو دنیا آج عزت دے رہی ہے میجر صاحب کی وجہ سے، ان کی شہادت کی وجہ سے، لیکن مامتا تو ہے، بیٹا شہید ہوا، تو کیا محسوسات ہے جب آپ کو خبر ملی کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ وطن کی خاطر شہید ہو گیا، اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ جب خبر ملی اس ٹائم تو ایک دم سے فخر بھی بہت ہوا اور دل میں دکھ بھی ہوا، کیونکہ 1 مہینہ پہلے میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی
29 को मेरे बेटे का वलीमा था दिसंबर को, और जनवरी की 29 को मेरा बेटा शहीद हो गया 1 महीने बाद। इस बात का दुख था मुझे कि मेरे बेटे की अधूरी खुशियाँ रह गई हैं, मगर जो अल्लाह ताला ने मेरे बेटे के नसीब में खुशी लिखी है, कामयाबी लिखी है, वो दुनिया की खुशी से बढ़ के नहीं है। बस मेरे अल्लाह राज़ी तो मेरा बेटा खुश और मैं भी बहुत खुश। मुझे बहुत फ़ख्र है अपने बेटे पे। माँ जी, जब आपको इत्ला मिली है कि मेजर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो शहादत के अजीम रुतबे पर फायज हो चुके हैं, तो आपके मुंह से पहला लफ्ज़ क्या निकला था? मैंने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरा बेटा सुरखरू हो गया। अपनी वर्दी की लाज रखी मेरे बेटे ने, अपनी माँ की भी लाज रखी, अपने वतन की लाज रखी, उस वर्दी की लाज रखी, उस झंडे की लाज रखी। हाँ जी, आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगी वो अजीम बेटे, आपके हमज़ा जैसे बहुत सारे अभी नौजवान जो हैं इस वक्त बॉर्डर्स पे अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं, उन बेटों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा उन बेटों के लिए यही पैगाम है कि बस अपने मुल्क की खातिर जो लफ उठाए थे, जब भी कोई मौका आए अपने मुल्क की खातिर तो कभी पीछे ना हटे। मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मैं अपने बेटे की इस शहादत पे फ़ख्र करती रहूँगी। बस मुझे इस बात की खुशी है अल्लाह ताला मेरे बेटे की ये शहादत कबूल करे। अल्लाह ताला जो जिस बच्चे को भी वतन की खातिर आगे बढ़ने की ज़रूरत पेश आए तो वो बच्चा सीना तान के आगे खड़ा हो। बस। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेजर हमज़ा शहीद के वालिद। आइए ज़रा इनसे हमज़ा की यादें जो हैं वो पूछते हैं, कैसे भर्ती हुए और क्या क्या मुश्किलात आई, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई और किस मुकाम पे शहादत उनको जो है वो नसीब हुई और इन तक पैगामात कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हमज़ा की ख्वाहिश थी आर्मी में भर्ती होना, या ये आपकी या उनकी वालदा की किसी ख्वाहिश थी? हमजा की खुद भी अपनी ख्वाहिश थी और इसकी वालदा की ख्वाहिश थी। अल्लाह का फजल हुआ है कि वो पढ़ाई करता रहा, अच्छी पढ़ाई की है उसने, बहुत मतलब नेक बेटा था मेरा। पढ़ाई के बाद फिर उसने एडमिशन लिया है इधर चकवाल कैडल कॉलेज में। उधर से ये बहुत अच्छी इसने मतलब तरबियत हासिल की, बहुत अच्छे नंबरों से ये पास हुआ है। फिर इसने आगे मतलब उधर किया है दूसरा क्वाड में गए, मतलब उसका मतलब उधर टेस्ट वगैरह हुआ है। ये 1250 लड़का था जिसमें से ये मेरा बेटा सबसे फर्स्ट आया है। उधर मैंने देखे जर्नल बहुत बहुत बड़े मतलब अफसरों के बच्चे जो है ना रो रहे थे, फेल हो गए थे, और मेरा बेटा जो है 1250 लड़के में से ये फर्स्ट आया है। तो उसके बाद मतलब काफ़ी मतलब लोग कह रहे थे कि ये बहुत मुश्किल है, ये OR का बेटा है, ये बहुत मुश्किल, किधर कैसे जाएगा ये आर्मी में। लेकिन मेरी जो वाइफ है इसने कहा कि इंशाल्लाह मेरा बेटा जाएगा और अफसर बनेगा। अच्छा, ये बताइएगा, भर्ती के दौरान कोई मुश्किलात पेश आईं, हर्डल्स पेश आईं, और जब ये सिलेक्ट हो गए थे उसके बाद इनकी रेजिमेंट कौन सी थी और ये कहाँ का इनकी पोस्टिंग रही? इनकी रेजिमेंट थी 22 FF। ये इधर मतलब इस साइड पे लगी थी अपना सियालकोट वाली साइड पे। तो उसके बाद ये कुछ अरसा उधर रहे, फिर ये आगे चले गए सियाचिन ग्लेशियर में। उधर ये 2 साल रहा है। 2 साल के बाद ये उधर से वापस आया है। फिर ये मतलब ये सियालकोट में रहा है तकरीबन 1.5-2 साल। उसके बाद फिर इधर ये आए, अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया इसको उधर आगे गए हुए। अच्छा, ये बताइएगा, ये ऑपरेशन में कितने अरसे से हैं? इससे पहले भी किसी ऑपरेशन में ये शामिल रहे हैं, और क्या कभी ये इस तरह की किसी फायरिंग की जद में पहले भी आए हैं? ये पहले रहे सियाचिन ग्लेशियर में, उधर भी ये ऑपरेशन के लिए गए थे आगे, लेकिन उधर मतलब जो ऐसा कोई मसला इनका पेश नहीं आया है। जब से ये इधर गए इधर तो काफ़ी मतलब हालात ख़राब थे। कभी फ़ोन भी करता था कि बहुत हालात ख़राब है, बहुत मतलब जो है ना मसले हैं इधर। काफ़ी पहले भी बंदे इनके मतलब शहीद हुए हैं। तो अभी जब आया तो कहता था 1.5 साल हो गया है मेरा, 6 माह रह गए, इंशाल्लाह जो मैं इधर वापस आ जाऊँगा फिर जो है ना सारे मसले हल हो जाएंगे। बस अल्लाह का। जिस दिन इनकी शहादत हुई है उस दिन ये किस वक्त घर से निकले हैं, कब इनकी शहादत हुई है, क्या वहाँ पे पूरा वाकया पेश आया? शादी के बाद ये 17 तारीख को वापस चला गया था। 2-3 दिन के बाद मतलब जो है ना ये आगे गए, तो आगे मतलब जो है ना, हालांकि ये 2IC की ड्यूटी कर रहे थे, तो हालांकि जो इनका ओरिजिनल 2IC था उसने कहा कि हम आप छोड़े, आप रहने दें, आगे बंदे हैं इधर हो, आप रहने दें। इसके जो CEO है कर्नल साहब ने, उसने भी कहा कि हम नहीं जाएँ, आपका काम नहीं है, बंदे आगे। इसने मतलब उनकी नहीं मानी और अपने 7 बंदे लेके ये आगे चला गया। तो आगे से मतलब ये आ गए, उधर से बंदे आ गए थे, इन्होंने मतलब मोर्चे में खड़े थे, फायरिंग उन्होंने भी की है, इन्होंने फायरिंग की है, और मेरे बेटे ने 6 बंदों को मतलब जो है तो ख़त्म किया है। जब ये इधर से मतलब ख़त्म हो गए, फिर इन्होंने कहा कि चलो लाशें हम इनकी उठा के ले आए इधर की, मतलब पहचान करेंगे ये किधर से आए, कहाँ से आए।
لاشیں اٹھانے کے لیے آئے تو ادھر آبادی تھی تھوڑی کچھ، آبادی سے کوئی بندے دوڑ نکلے ہیں، مطلب بڑے نہیں تھے، بچے ہی کہہ رہے تھے، وہ بچے تھے موٹر سائیکل کے اوپر جا رہے تھے، وہ ساتھ والے بندے نے مطلب ان کو کہہ رہے ہیں کہ سر یہ بندے جا رہے ہیں، ان کو بھی ختم کرو۔ بیٹے میرے نے کہا کہ نہیں یہ بچے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس مصیبت میں ہیں، کہیں ان کو جانے دو۔ وہی انہوں نے مطلب اس کے اوپر جو ہے نا بیسٹ کیا، اور ان بچوں نے اس کو مطلب میرے بیٹے کو شہید کر دیا۔ اچھا حمزہ کو جس وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، کتنی ان کو گولیاں لگی، کس جگہ پہ گولیاں لگی، کیا ایٹ دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا وہیں ہاسپٹل پہنچ گئی؟ زخمی حالت میں یہ لڑتا رہا ہے، فائرنگ کرتا رہا ہے، مطلب بہت جو ہے نا دلیری سے اس نے مطلب کام کیا ہے۔ وہی جو گزرے ہیں بندے، انہوں نے مطلب یہ اپنے لگے تھے، وہ لاشیں اٹھا رہے تھے ان کی، انہوں نے ابھی مطلب ان کی طرف دیکھا ہے، انہوں نے گزرے ہیں، انہوں نے بریسٹ لگایا اور اس کو مطلب سیدھی جو ہے نا آگے لگی، ایک بار سینے پہ لگی ہے گولی۔ اچھا سر، آپ خود آرمی میں رہے ہیں، آپ نے یہ ساری صورتحال دیکھی ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت مشکل فورس میں مشکل ڈیوٹی کر کے نکلتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا جو ہے اس مشکل کا سامنا کرے یا اس طرح کی کوئی جاب کرے، تو اب جب حمزہ جا رہا تھا آرمی کے اندر تو آپ نے ان کو روکا نہیں، یا کیا آپ نے خود انہیں کہا کہ آپ جائیں وہاں؟ یہ ہماری بہت خواہش تھی، اور اس کی اپنی بھی بہت خواہش تھی، اس کی والدہ بھی خواہش تھی کہ یہ جائے گا آرمی میں، جائے گا انشاءاللہ، میں اس کو آرمی میں بچاؤں گی، ان کو افسر بناؤں گی۔ تو میری بھی یہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا آرمی میں لے جائے، آفیسر بنائے اس کو، تاکہ آرمی کا بھی نام روشن کرے، اپنے علاقے کا بھی نام روشن کرے۔ تو اس لیے ہم نے اس کو روکا نہیں ہے، ہم نے جانے دیا اس کو۔ آرمی کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، منفی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن حمزہ جیسے لوگ جو ہیں، حمزہ جیسے جو نوجوان ہیں، وہ اس ملک کی خاطر اپنا آج جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں، اپنا آج ختم کر رہے ہیں تاکہ یہ ملک جو ہے ہمیشہ رہے۔ یہ بتائیے گا، آج حمزہ جیسے بہت سارے نوجوان بارڈرز پہ لڑ رہے ہیں، اس وقت بھی جہاں پہ حمزہ کی شہادت ہوئی وہاں پہ بھی آپریشن جاری ہے خوارج کے خلاف، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہنا چاہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے، ان کو فنا کرے، اور پاکستان میں سکون ہو جائے۔ لیکن ابھی کہہ رہے تھے کہ کافی مطلب جو ہے نا پہلے سے کافی مطلب حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، تو ہماری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ان لوگوں کو جو ہے نا بالکل ختم ہو جائیں۔ یہ آپ کا حمزہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا اور کون کون سی یادیں آپ نے حمزہ کی سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں؟ حمزہ میرا بھانجا تھا، میں اس کی خالہ ہوں چھوٹی۔ حمزہ کے ساتھ ہماری اتنی یادیں ہیں کہ میں کون سی بیان کروں۔ جب وہ آرمی سے واپس آتا تھا تو مجھے کہتا تھا کہ خالہ آپ آ جائیں۔ وہ وہاں سے چلتا تھا نا تو ہم ساری خالہ کو اکٹھا کر لیتا تھا، کہتا تھا خالہ میں آ رہا ہوں، آپ ساری آ جائیں، میں سب کے گھر رہوں گا تو سب اکیلی اکیلی ہوں گی تو سب ادھر ہی آ جائیں۔ ہم ساروں کو اکٹھا کرتا تھا، کہتا تھا خالہ آپ آنا کرتی ہیں، میرے بچے اسکول جاتے ہیں، میرے بچے اسکول جاتے ہیں، میں بھی تو کبھی کبھی چھٹی آتا ہوں نا، تو مجھے لینے خود آ جاتا تھا، کہتا تھا آپ آ جائیں، میں بہانہ نہیں سنوں گا، تو میں اس کے گھر آ جاتی تھی۔ پھر جب تک وہ یہاں رہتا تھا نا تو مجھے ساتھ ہی رکھتا تھا، ہم ساری خالوں کو، ماموں کو، سب کو اپنے پاس رکھتا تھا، کہتا تھا جب تک میں یہاں ہوں آپ لوگوں نے نہیں جانا، کیونکہ آپ لوگ چلے جائیں گے تو میرا دل ہی نہیں لگتا، پھر میں کیسے اکیلا رہوں۔ اس کو وہ بھائیوں سے بھی بہت پیار کرتا تھا، ہم خالوں کے ساتھ وہ ایسے تھا جیسے دوست نہیں ہوتے، دوستوں سے بھی زیادہ وہ اپنے ہر دل کی بات، اپنی ہر بات، اپنی ہر شاپنگ، ہر چیز ہم سے شیئر کرتا تھا۔ کہتا تھا جب بھی کوئی چیز لینی ہو تو وہ کہتا تھا خالہ آپ بتائیں مجھ پہ کون سی چیز سوٹ کرے گی۔ اس کی شادی کی ساری شاپنگ ہم نے مل کے کی، اس نے مجھ سے پوچھ کے سارا کچھ خریدا، کہتا ہے خالہ آپ بتائیں مجھ پہ کون سی کپڑا، کون سا رنگ سوٹ کرے گا۔ حسد کے اس کی شیروانی بھی جب ہم خریدنے گئے ہیں تو اس نے پہلی دفعہ جب پہن کے چیک کرائی ہے نا تو یقین کرے کہ ہمارا دل جیسے باہر آنے لگا۔ میں نے کہا حمزہ یہ تم پہ اس طرح سوٹ کی ہے نا جیسے یہ تمہارے لیے کسی نے ڈیزائن کی ہے۔ کہتا ہے خالہ آپ نے کہہ دیا تو اب میں یہی پہنوں گا، یہی لوں گا۔ بس اس کی یاد ہمارے دل میں ایسے ہے نا جیسے ہمارے اندر کانٹا سا چپ گیا، ماں صدقے جائے میرا بچہ شہید ہو گیا، بہت اعلیٰ مرتبے پہ چلا گیا ہے۔ اچھا، آپ کے ساتھ حمزہ کی بہت دوستی تھی، تو کیا آپ کے ساتھ حمزہ نے کبھی شہادت کا اظہار کیا کہ خالہ میرے لیے دعا کریں، یا میری خواہش ہے کہ میں شہادت کے رتبے پہ جاؤں؟ جب بھی ہم آتے تھے نا اکٹھے بیٹھتے تھے نا تو باتیں کرتا تھا، مجھے بہت قصے سناتا تھا اپنے وہاں کے، کہ میں کہتی تھی حمزہ وہاں پہ کیسے ٹائم گزارتے ہو، کہتا ہے آپ بھی وہاں پہ ٹائم کیسے گزارتا ہوں،
वहाँ पे हम खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, तो हमें ऑर्डर जारी हो जाते हैं कि आप लोगों ने वहाँ पे जाना है। कहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के हम खाना छोड़ के चले जाते हैं। कहता है कभी कभी तो ऐसे होता है कि हम कमरे से बाहर जाते हैं तो हमें उम्मीद नहीं होती कि हमने वापस भी आना है। कहता है जब हम जाते हैं ना तो हम ये भूल के जाते हैं कि हम वापस आएंगे, हम यही सोच के जाते हैं कि बस अब हम पता नहीं वहीं पे रहेंगे या वापस भी आएंगे, ये याद नहीं रहती कि हमने वापस भी आना है। तो बस यही है कि जब आता था कहता था खाला यही दुआ करें, मरना तो हम सब ने है, लेकिन मुझे दिल है कि मेरी शहादत की मौत हो। कहता है ये मर्तबा किसी किसी को मिलता है, जैसे हज उम्रे पैसों से नहीं होते वैसे शहादत भी नसीबों से मिलती है। सब लड़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जवान होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, सब लड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी वहाँ से ड्यूटी पूरी करके वापस आ जाते हैं। तो मेरा दिल करता है कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे शहादत नसीब हो। तो मेरे बच्चे ने वही मर्तबा हासिल की है, हम सब की शान ऊँची की है। वहाँ सदके जाए हम उसकी शहादत पे बहुत ज़्यादा हमें नाज है, फ़ख्र है अपने बच्चे पे। उसने पीठ नहीं की, उसने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं, वहाँ सदके जाए। अच्छा, ये बताइएगा, कह देना बहुत आसान है कि मरना तो एक दिन सब ने है, लेकिन शहादत जैसा रुतबा मिल जाए। लेकिन जवान बेटा हो जिसकी सिर्फ 1 माह पहले शादी हुई हो, तो जब आपको इतला मिली कि हमज़ा जो है वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, वो शहादत जैसा रुतबा उन्होंने हासिल कर लिया, तो आपके क्या महसूसात थे? क्या उनकी वालदा की तरह आपने भी कलमा शुक्र अदा किया, या आपको कोई दुख हुआ या कोई ऐसी चीज़ आपको महसूस हुई कि ये तो कल इसको मैंने खुद दूल्हा बनाया है, आज ये एक लाशा आ रहा है? ये तो बात एक नेचुरल सी है कि जब ऐसी खबर आती है पहले तो यही होता है कि बच्चा हमारा दुनिया से चला गया है। तो शहादत पे हमें नाज तो इतना है कि हम बता नहीं सकते, लेकिन दुख भी इस बात का बहुत ज़्यादा है कि हमारे बच्चे की 1 महीना पहले शादी हुई है और वो उस शादी को पूरी तरह से टाइम नहीं दे पाया। मैं उसकी दुल्हन से कहती थी, मैंने कहा सना हमजा अभी छुट्टी आया है तो वो बहुत जल्दी वापस जा रहा है। मैंने कहा जब वो वापस आएगा हम सारी खाला वापस आएंगी, तुम्हें दुल्हन बनाएंगे और हमजा को दूल्हा बना के ना हम दोबारा ढोलकी रखेंगे और पूरा हफ्ता तुम्हारे लिए ढोलकी बजाएंगे और हमजा को दूल्हा बना के तुम लोगों की शादी दोबारा सेलिब्रेट करेंगे। मैंने कहा टाइम पहले गुजर गया है, लेकिन हम पूरी तरह से हमजा तुम्हारे साथ रह नहीं पाया। तो कहती है खाला ठीक है, जब आप जो कह रही है वैसे ही करूँगी। वो कहती है, मैंने कहा सना कपड़े तो पहना करो ना। कहती है आप ही हमजा चला गया तो अब मैं क्या कपड़े पहनूँ, जब वो आएगा तो मैं कपड़े पहनूँगी। जब ये बातें सोचते हैं ना तो दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। हम सोचते हैं कि उसने अपनी शादी को पूरी तरह से एंजॉय भी नहीं किया, अपनी शादी को टाइम भी नहीं दिया, लेकिन जो अल्लाह ने उसके साथ करम किया ना, वो उसकी हसरत हमें ये है कि वो अपनी हसरत दिल में नहीं लेके गया। मरना तो ज़ाहिर बात है, वही बात आ जाती है कि सब कहते हैं मरना तो है, लेकिन जो उसकी मौत हुई है, जो उसको शान उसकी ऊंची हुई है, जो उसने हमें फ़ख्र दिया है, जो हमें हमारे साथ उसने जो किया है ना, उस पर हमारा दिल बहुत खुश है, हमारा दिल राज़ी है उसके साथ पूरा इलाका, पूरा मुल्क उसके साथ है। वहाँ सदके जाए, वो तो जन्नत में है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बड़ा एक ख़ास मेहमान मौजूद है, जो कि 8 साल जिन्होंने मेजर हमज़ा शहीद के साथ गुजारे हैं। ये हैं नईम साहब, जो NCB थे हमज़ा साहब के साथ। तो ज़रा इनसे जानते हैं कैसी शख्सियत के मालिक थे। जब वो अफसर थे, ये उनके सबॉर्डिनेट थे, तो इनके साथ उनका रवैया कैसा होता था, और जिन दिन शहादत हुई थी उस दिन उन्होंने इनसे कोई ख़ास बात की थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप उनके साथ 8 साल रहे हैं, तो क्या यादें आपने संभाल रखी हमज़ा साहब की? हमज़ा साहब की तो इतनी यादें कि मैं आपके सामने बयान ही नहीं कर सकता। हमज़ा साहब जैसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मेरी सर्विस 16 साल हो गई है आर्मी में, तो हमज़ा साहब के साथ मैंने 8 साल गुजारे हैं। तो हमज़ा साहब ने कभी इन 8 सालों में मुझे कभी तू करके बात नहीं की। वो मुलाज़िम नहीं समझते थे, मुझे एक छोटा भाई समझते थे। हमेशा मेरा उन्होंने ख्याल रखा है। कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि यार ये मेरा साहब है। मुझे ऐसे लगता था कि यार भाई है मेरा। अच्छा, ये बताइएगा, वो आपके ऑफिसर थे, आप उनके अंडर काम करते रहे हैं, 8 साल गुजारे हैं, किस किस जगह पे आपकी उनके साथ ड्यूटी रही है? और ये बताइएगा, बतौर आप वो आर्मी लीडर थे, लीड कर रहे थे, तो कैसा जज्बा था उनके अंदर? जज्बा तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। मैं हमज़ा साहब के साथ 8 साल से मैंने उनके साथ 2 कोर्स किए हैं। एक वायो, जब वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनते हैं, उसमें भी मैं उनके साथ था। फिर जब वो कैप्टन से मेजर बन रहे थे, MCC कोर्स पे हम उधर कोयटा गए थे, तो भी 5 माह का होता है, उधर भी मैं उनके साथ रहा हूँ कोयटा में। तो उसके बाद फिर हमारी पोस्टिंग हो गई, हम आ गए थे शिंक्यारी में, एज ए इंस्ट्रक्टर आए थे वो उधर। फिर उधर से
जब साल गुजरा हमारा तकरीबन, और उसके बाद हमजा साहब की पोस्टिंग आ गई थी यूनिट में। हम लोग वापस गए थे वज़ीरिस्तान। तो मैं छुट्टी पे था, तो पिछले दिनों जब उनकी शादी हुई थी हमजा साहब की, तो उनकी मुझे मैसेज आया, कहने लगा नहीं यार मेरी अभी शादी है 29 को, तो तूने शादी में आना है। तो मैंने कहा सर मैं पहले आ जाता हूँ, कोई काम शाम हो। कहने लगा नहीं यार काम के लिए तो उधर बहुत लोग हैं, काम मैं आपको काम के लिए नहीं बुला रहा हूँ, लेकिन आपने आना है, मेरी शादी में आना है, ज़रूर आना है। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं शादी में आया हूँ, तो उस दिन जब शादी में मैं पहुँचा हूँ तो मुझे गले लगा के मिले, कहने लगा गुड यार नहीं तुम आ गए हो शादी में भी। तो जब जाने लगा हूँ मैं, मुझे कहने लगा नहीं तूने जाना नहीं अभी, मैंने तेरे साथ तस्वीर बनानी है अकेले में, तेरे साथ अकेले में बनानी है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं तब तक नहीं जाऊँगा, आपको पूछ के जाऊँगा। तो मैं फिर छुट्टी चला गया था वापस। तो जब मैं उस दिन मुझे पता चला, रात को कॉल आई कि यार इस तरह हमजा साहब शहीद हो गए। मैंने सोचा यार उसकी जगह अगर मैं मर जाता, मैं शहीद होता, मेरे साहब मुझे, मैं मज़ीद आगे और सर्विस करूँगा और अफसर के साथ रहूँगा ना रहूँ, लेकिन हमजा साहब जैसा अफसर मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। मेरे 8 साल कैसे गुजरे मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि यार मैं किसी आर्मी अफसर के साथ हूँ। मैं सोचता था मैं भाई के साथ हूँ। मुझे कभी हमेशा मेरी उसने हेल्प किया, हमेशा हर लिहाज से मुझे वो भाई छोटा बोलते थे। मरना तो सब ने है, मुझे अपने साहब के मरने का दुख नहीं है, लेकिन उनके बिछड़ने का है। जिस मौत के लिए तो अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है कि हम जिहाद करेंगे, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है जिहाद, लेकिन ये रुतबा जो मिलना है ना, वो किसी को मिलना, हर बंदे को नहीं मिलता। मरती दुनिया दिन में कितने लोग मरते हैं, लेकिन ये मौत जो मैंने देखी है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी 32-33 साल उम्र हो गई है मेरी भी, मैंने भी बहुत जनाजे देखे। इतनी आवाम मैंने कल देखी है कि मेरी सोच से भी बाहर थी कि यार इतने लोग, और वो लोग रो रहे थे कि जो जिनको मैं जानते ही नहीं थे, साहब भी नहीं जानते थे, इनकी फैमिली भी नहीं जानती थी, और यूनिट के अफसर जो कल इतना रो रहे थे, कह रहे थे यार हमें दुख दे गया। क्योंकि हम लोग तो इकट्ठे होते थे, हमें तो पता होता था, मैं एक जगह सब अफसरों को, मैं मेरी यूनिट के जिनको मैं जानता था वो बहुत उदास थे, कह रहे थे यार हमजा साहब हमें छोड़ के चले गए। अच्छा, आप तो खुद आर्मी के अंदर मौजूद हैं, और जो हमजा साहब के सबॉर्डिनेट थे उस दिन ऑपरेशन में उनके साथ थे, उन्होंने आपसे कुछ शेयर किया होगा। दरअसल 29 जनवरी को हुआ क्या था, किस तरह ऑपरेशन हुआ, किस तरह ये फायरिंग की जद में आए और इनकी शहादत कैसे हुई थी? मैं तो खैर पीछे था, तो शहादत में जो लड़के आगे थे, मेरे साथ के जो लड़के थे, उन्होंने कहा था यार मगरिब के टाइम जो है ना, हमजा साहब मस्जिद में हमारे साथ मगरिब की नमाज साथ पढ़ी है। तो उसके बाद जो है ना 8 बजे पता चला यार हमजा साहब शहीद हो गए। तो यकदम रह गए थे सारे कि यार ये कैसे हो गया। क्योंकि हमजा साहब जब भी मैं कह रहा हूँ ना, 8 साल में हमजा साहब के चेहरे पे हमेशा स्माइल देखी है मैंने, कभी उसके चेहरे पे वो गुस्सा नहीं देखा। गुस्सा कभी आता ही नहीं था उस बंदे को, कभी भी नहीं। मैंने आज तक मैंने उसको 8 सालों में मैंने नहीं देखा यार उसको कभी गुस्सा आया हो। हमेशा मुस्कुराते, नातें पढ़ते रहते थे। सारे बंदे कहते थे यार ये आपके साहब के, मुझे लड़के कहते थे यार आपके साहब की आवाज़ बहुत प्यारी है। यूनियन में कोई फंक्शन होता था उसमें वो नाते पढ़ता था। जे पक्की खबर मिलन दी देवे बहुत गर्मी हो गई चूरियां आ सरदार करा जाती ना किते रोंदी ना मर जा किते रोंदी ना मर जा। सोशल मीडिया पे अक्सर एक प्रोपेगेंडा होता है कि आर्मी वाले अगर मोर्चों पे हिफाजत करते हैं तो कौन सा एहसान करते हैं, तनख्वाह भी तो लेते हैं। ये बताइएगा जंग की असल सूरत हाल क्या होती है, आर्मी का असल चेहरा कौन सा होता है, और आवाम को बताइएगा कि जब इस तरह के ऑपरेशन की जद में आते हैं, जब ख्वारिज के ख़िलाफ़ या इस तरह के मुल्क दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ आर्मी लड़ती है, तब क्या सूरत हाल होती है? असल में भाई लोग तो कहते हैं यार कि बजट खागी, फ़ौज खागी, लेकिन उनको क्या पता कि यार ये जैसे अभी आपने इनसे इंटरव्यू लिया, इनकी अम्मी से अबू से, अभी इनके दिल पे दुख तो उनको होगा कि भाई हमारा बेटा शहीद हुआ है। बजट तो ये सारे कहते हैं यार बजट खा गया, लेकिन इनकी जब जाने जाती हैं, अभी इसकी तो साहब की जो है ना 1 महीना शादी क्यों नहीं हुआ था तो वो शहीद हो गए। तो बजट सही है या ये जान गई है सही है, उसकी जान चली गई यार। बजट का तो कहते हैं लोग 100 बातें ही करता है फिर कि यार फौज बजट खागी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेजर हमजा शहीद के छोटे भाई। इनसे जानते हैं कि बड़ा भाई कैसा था, सख्त थे, रवैया कैसा था और इनसे क्या बातें करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आपके भाई ने एक बहुत अजीम रुतबा हासिल किया, शहादत जैसा रुतबा उन्हें मिला, क्या कहना चाहेंगे भाई के बारे में? मेरे पास अपने भाई के लिए अल्फाज अपने भाई के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। उस जैसा भाई दुनिया में नहीं होगा। मुझे कभी उसने महसूस ही नहीं होने दिया, ना किसी चीज़ की कमी। सारी ख्वाहिशें मेरी बिन कहे पूरी करने वाला मेरा भाई चला गया। उसकी शहादत में मुझे फ़ख्र है, लेकिन उसकी कमी में सारी ज़िंदगी नहीं पूरी कर सकता। जी बताइएगा, बड़ा भाई था आपका, क्या बात होती थी उनके साथ, और शहादत से पहले आपकी आखिरी दफ़ा उनसे क्या बात हुई थी? शहादत से एक दिन पहले मेरी वैसे ही नॉर्मल बात हुई उससे। मैंने सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, हाल चाल पूछा, कहता है ठीक है। कहता फिर बात करूँगा, अभी बिज़ी हूँ। उसके बाद शहादत वाले दिन मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। अच्छा ये बताइए, हमज़ा ने ऑपरेशन में वो शामिल थे, उन्होंने ऑपरेशन की सख्तियाँ देखी हुई हैं, आपसे क्या चीज़ें शेयर किया करते थे? क्या आपको मोटिवेट करते थे कि माँ बाप का ख्याल रखना, उन्हें ये नहीं बताना कि मैं कितनी मुश्किलात में हूँ, या आपको कहते थे कि आपने आर्मी में आना है या नहीं आना? नहीं, कभी तो उसने मुझे महसूस ही नहीं होने दिया। सबका ख्याल वो खुद रखता था। कभी उसने ऑपरेशन के बगैर बारे में इस तरह घर आके मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की कि मेरी वजह से मेरा भाई परेशान होगा या कोई ऐसी बात होगी। कभी उसने मुझे ऐसे डीमोटिवेट नहीं किया। हमेशा बस मुझे यही कहता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ, मेरा साथ छोड़ के चल। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपको हमज़ा की शहादत की इत्तला किसने दी, और उसके बाद आपके क्या महसूसात थे? आपने भी कलमा शुक्र अदा किया कि भाई की जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई, या आपको एक इतना अहम साथी और बड़ा भाई बिछड़ने का, जैसे अभी दुख है तब भी ऐसे ही दुख हुआ था? मुझसे मेरा भाई बिछड़ा है। भाई से बढ़कर वो मेरा दोस्त था। मैंने भाई के साथ साथ अपना दोस्त भी खो दिया है। मुझे तीन चार जगह से कॉल आई। उसके दोस्तों ने कॉल की, मुझसे पूछा कि भाई से बात हुई है। मैंने एक को बोला मेरी बात नहीं हुई आज, दूसरे को भी बोला। जब उसने तीसरे ने मुझे कॉल करके बोला भाई से बात हुई है, फिर मुझे थोड़ा शक हुआ। फिर मैंने 2-3 बंदों को मैसेज किए। मैंने कहा भाई ठीक है। उन्होंने बोला हम पता करके बताते हैं। इतने में भाभी ने भी मुझे मैसेज किया, कहती है हमज़ा मेरी कॉल नहीं उठा रहा, पता करवाओ। 15-20 मिनट में आगे पीछे मैसेज करता रहा, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं। फिर एट द एंड भाभी की कॉल आई, वो आगे से रो रही थी, कहती हैं भाई शहीद हो गया है। लेकिन मैंने उस वक्त माना नहीं। मैंने कहा मैं पहले खुद पता करूँगा। 3-4 बंदों से मैंने कॉल की, पता किया, फिर उन्होंने कंफर्म करके मुझे बताया कि मेरा भाई शहीद हो गया है। ये बताइएगा, आपने बहुत अरसा गुजारा हमज़ा भाई के साथ, तो बड़ा भाई होने के नाते कैसे इंसान थे? आर्मी में जाने के बाद जब वो लीडर बनते हैं और आर्मी की एक सख्त ड्यूटी करते हैं, उनके रवैये में कोई तब्दीली आई? भाई ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। वो घर था, बाहर था, उसने कभी वो ऑफिसर वाला जो है ना रवैया अपनाया ही नहीं है। मुझे हमेशा उसने भाइयों की तरह, और सबसे बढ़ के मुझे उसने दोस्तों की तरह हमेशा समझाया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे है कैसे नहीं। कभी उसने वो आर्मी वाला लहजा अपनाया ही नहीं है। हमेशा मेरे साथ दोस्तों की तरह रहा। मुझे कभी किसी दोस्त की कमी महसूस ही नहीं होने दी। घर में मेरा भाई बन जाता था, घर से निकलते हुए मेरा दोस्त था। हमेशा उसने मुझे समझाया, मोटिवेट किया। अच्छा ये बताइए कि शहादत जैसा रुतबा उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन बड़ा दुख है कि एक बड़ा भाई चला गया, दोस्त चला गया, तो क्या शहादत पे दुख है, ये अफसोस है कि उन्होंने आर्मी क्यों ज्वाइन की? अगर आर्मी ना ज्वाइन की होती, किसी और सर्विस में चले जाते, तो आज हमारे साथ होते, या आपको भी फ़ख्र है उन पे? मुझे फ़ख्र है। भाई की ख्वाहिश थी, और भाई की ख्वाहिश के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। उसने अपनी ख्वाहिश भी पूरी की। मुझे तो छोड़ के चला गया, उसका दुख मैं कभी भी नहीं बोलूँगा, लेकिन उसकी ख्वाहिश मेरे लिए सबसे बढ़ के थी। उसकी कमी तो मुझे हमेशा रहेगी, लेकिन उसकी ख्वाहिश को मेरा सलाम।